हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं 96 के क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। ये ऐसे पुराने ताले होते थे। என்னடா அது बैक है। மெமரிஸ். பழைய வாசனை எப்படி இதெல்லாம் இவ்வளவு நாள் பத்திரமா வச்சிருக்க ओ वो स्याही फेंकी थी उन्होंने शर्ट पे ब्रिज जो पर। उन्होंने हाँ, शाही फेंकी थी। वो शर्ट उन्होंने वैसे ही रखा। உன்னோடது. எந்தா ஐயோ எப்படிடா இது உங்ககிட்ட வந்தது வருது. அப்படியே அது கால் முளைச்சு திருன்னும் உன் ஞாபகமாக இருக்கட்டுமே. அதான் எப்படி நீ எப்பவுமே பிடி போயிட்டு போகும்போது கிளாஸில் துப்பட்டா கழட்டி வச்சுட்டு अच्छा। போவேல, பல நாள் ஃபாலோ பண்ணி திட்டமிட்டு தூக்கிட்டேன். ஆ இதான் கிடைச்சது. ஏய் பார்த்து 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 பார்த்து. டேய் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படியே எப்படிங்கிற லவ் லெட்டரா இல்லை. அட பாவி கவிதையா என்ன பத்தியா இங்க கொடு இல்லை ஷானு, படித்த ஒரு மாதிரி சிரிப்பு வெக்கமாக இருக்கு. டேய் டேய் என்ன பத்திலாம் யாரா கவிதை எழுத போறா நீ எழுதினாதான் உண்டு சரி நீயே படி படி பெண்ணே, நீ என்ன அலைப்பாயும் கடலா? உன் அடுத்த அலைக்கு என் மனம் ஏங்குகிறதே. மீன் கூடைக்கும் பூக்கடைக்கும் விளம்பரம் தேவையா? உன் வருகையை அறிய வகுப்பு பதிவேடு தேவையா? மின்னலை பார்த்தால் கண்கள் போய்விடுமாம், மின்னலை பார்த்தால் கண்கள் போய்விடுமாம். உன் கண்களை பார்த்தால்தான் எனக்குள் மின்னல் போகிறது, உன் கண்களை பார்த்தால்தான் எனக்குள் மின்னலே போகிறது. 10 மாதம் சுமந்த உன் தாய்க்கு நீ சொந்தமெனில், 10 மாதம் சுமந்த உன் தாய்க்கு நீ சொந்தமெனில், உன்னை இத்தனை காலம் மனதில் சுமக்கும் எனக்கும் நீ சொந்தம்தான். ये लास्ट वाली लाइन। ओ ராம் நீ தூங்கலையா? சரி மேல வா மேலையா? இல்லை, நான் எப்பவுமே தரையெல்லாம் படுப்பேன், எனக்கு இது மேல வா கம்ஃபர்டபுளாக. वो फोटो है उनके स्कूल का। டேய் உன் இமெயில் ஐடி ஹைட் வெயிட் இத்தியாதி எல்லாத்தையும் சொல்லு ஏன்? இன்னைக்கு உனக்கு பொண்ணு பார்த்துடலாம் அதெல்லாம் வேணாம். ஏவா இந்த பார், ஜானகி தேவ் மாதிரி ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு வேற ஒரு பொண்ணெலாம் கல்யாணம் பண்ண முடியாது. ஏன் நான் மட்டும் கே ராமச்சந்திரனை லவ் பண்ணிட்டு எம் சரவணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கல எல்லாம் முடியும் சொல்லு postbox78@gmail.com. 78। டைம் ஆச்சா இன்னும் கம்ம நேரம் இருக்கு. அந்த பொண்ணு ரெஸ்டாரண்ட்ல என்கிட்ட ஒன்று சொல்லிட்டு போனா ஆமாம், கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஏதோ தனியாக காதில் ஓதிட்டு இருந்த. என்னவா? சார் ரொம்ப நல்லவர் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னா. சார் நல்லவர்னு எனக்கும் தெரியும், பத்திரமா பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னா. அதுக்கு தான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. तो उन्होंने ये कहा था उनसे, रुकी हुई थी। ஆமாம்மா. क्योंकि कार उनके उनके होटल के बाहर होटल है। पे रहे।
उनके दांत पर भी गिरी थी बस। ये ऐसा मोमेंट है कि वो रुकना भी चाहती हो तो भी कुछ नहीं कर सकती, और वो उनको फोर्स नहीं करेगी, और वो अभी भी भी उनकी उन्होंने किया। जिम्मेदारियां जानती है। வறண்டிடும் நிலத்தில் பல கடல்கள் தந்தாய் இரவிங்கு தீவாய் நம்மை சூழுதே விடியலும் இருளாய் வருதே आखिरी के कुछ मोमेंट है, इसलिए वो उनके साथ गए। இந்த தாமரை குளம் நீரி கனியாகுதே அதன் சூரியன் பகலின்றி एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि तुम वहां पे खुश हो या नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन पे। जीवन तो होंगी वो खुश। अड़का शायद हो सकता है इनके इनकी वजह से वो इतना इमोशनल हो गई है। मतलब उन्हें कुछ पल मिले तो वो भी कितने कम। चलो एटलीस्ट उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। बहुत सारी अब वो चीजें क्लियर। गिल्ट नहीं रहेगा। अब जानू को ये नहीं लगेगा कि राम कभी वापस आया ही नहीं था उनके लिए। ये गिल्ट कभी नहीं हो। தினம் தினம் உயிர்த்தெழும் மனம் அன்றாடம் ஆயுமே உயிர் வரை நிறைந்துனை மனம் கொண்டாடி வாழுமே மரங்கள் சாய்ந்து கூடு வீழ்ந்தும் குயில்கள் ராகம் பாடுமே இரவு தீர்ந்து ஓய்ந்த போதும் இரவு பொறுமை காக்குமே மழை வழி கடல் விழும் விண் காதல் மண்ணை சேருமே முனை உடல் பிரிந்தினும் என் காதல் உன்னை சேர்ந்து வாழுமே நீ போய் வா इसलिए उन्होंने गियर बॉक्स पे, मतलब गियर पे हाथ रखा था। என்ன இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உன் கூட இருந்துட்டு போறேனே. ஏற்கனவே லேட் ஆச்சானோ? ப்ளீஸ் ராம். அப்படி பார்க்காத. சரி இது புடி. எங்க போற? சரி இரு, வந்து சொல்றேன். तो उनके वहां तक आएंगे वो। हाँ இதுக்கு நீ அழுதுன்னு வச்சுக்கோயேன். கண்ணத்துடா நட. तो उन्होंने पहले अरेंजमेंट करके रखे थे कि शायद ऐसा कुछ होगा। भाई साहब, उन्होंने टिकट खरीद लिया अब। आईडी तो उन्होंने ये पहले ही सोचा था हाँ। कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे जाने का काम पड़ सकता है, क्योंकि जो वो फील कर रहे सेम वो भी तो फील कर रहे हैं। सिर्फ फ्लाइट टेक ऑफ करने तक, उसके बाद में हाँ, Passengers traveling to Trichy by flight MD3720. Please proceed to gate number 30B. सुबह हो गई।
नहीं पॉसिबल है। भाई साहब, उनके कपड़े हम्म, मुझे यादों में एक और वो जरूरत जानू है। की एक और सीजन पे भाई साहब, पता है ऐसी मूवीज में ना एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती, और और मुझे ये लगता है रियलिटी है। ये रियलिटी है सच में। तो दोस्तों, कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसके बारे में डिस्क्राइब करना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि एक ही इमोशंस पूरे मूवी में है और वो कितने तरीकों से दिखाया गया है। इस मूवी की ये मुझे खासियत लगी। और दोस्तों, रामचंद्र का कैरेक्टर और जानू का कैरेक्टर दोस्तों इतना ज़बरदस्त लगता है इस स्टोरी में, सिंपल लगता है। और जिस तरीके से उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ऐसी लव स्टोरी किसी मूवी में कंडक्ट की गई है अब तक। और जो लास्ट वाला सीन था दोस्तों, वो इतना पेनफुल था सेम टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मूवी ना आपको क्लोजर नहीं देती कि रामचंद्र को, मतलब के रामचंद्र को जानू मिल गई है, ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा है। इसलिए वो ऐसा लगता है दोस्तों कि मूवी अधूरी छूट गई है, मूवी कहीं ना कहीं हमें एक बीच में छोड़ देती है, ऐसा ये मूवमेंट लगा मुझे। मतलब एक सिंपल मैसेज ये है कि अगर प्यार किया है तो साथ में रहना जरूरी नहीं है। हाँ, हर एक डेफिनेशन ही अलग दिखाई गई है इस मूवी में लव की, और वो बहुत अच्छा लगता है। कोई ज़रूरत नहीं थी राम और जानू को मिलाने की, मतलब वो अगर करते शायद तो और ड्रामेटिक लगता। और ये रियलिटी कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाई है। काफ़ी सारे मोमेंट्स जो थे मूवी में बहुत अच्छे थे। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पर वो आपको इमोशनल कर देती है। कई मौकों पे तो हमको ऐसा होल्ड करना पड़ा खुद को कि हम ना रो दे, इतना स्पेशली अच्छे। वो जो उनकी शादी के बारे में बताते, वो वो वाला वाला मोमेंट। मोमेंट मतलब इतना खुद को रोकना पड़ा है कि हम रो ना दे इस सीन पे। बट ओवरऑल मूवी इतनी अच्छी थी। और एक लास्ट टाइम सिर्फ एक ही बार उन्होंने ये दिखाया है, जब वो गियर बॉक्स मतलब हाँ, गियर चेंज करने वाला सीन कि वो गियर पे हाथ रखती है, और तब राम क्योंकि ने शुरू से अब तक पूरे सीन में वो हमेशा एक डिस्टेंस, हाँ दूरी बना एग्जैक्टली। के रखे हुए थे जानू के साथ। और उस मोमेंट पे वो फाइनली उनका हाथ पकड़ देते कि ये कुछ जो मोमेंट है उनके लिए। और दोस्तों, इस मूवी में जो मुझे
काफी सारी चीजें हैं जो डिटेलिंग मुझे काफी पसंद आई, जो कि उनका स्कूल मूवमेंट भी था। स्कूल मूवमेंट में जिस तरीके से उन्होंने सेटअप किया है पूरा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगता है, फील होता है कि वो 96 की बैच थी करके। एक सडन मूवमेंट था जहाँ पे बोर्ड पे वो 93 लिखा लिखा था, हुआ था, तो हाँ। हम वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि 93 में थे या फिर 96 में थे। हाँ, हो एक सकता है, एक मोमेंट है जहाँ हाँ, पे वो उनके सीने पे हाथ रखते हैं और जहाँ पे के रामचंद्रन बेहोश हो जाते हैं स्कूल टाइम पे, तो वहाँ पे हमने देखा है ब्लैक बोर्ड पे 1993 लिखा हुआ है। होता है। अगर वो देखना आप जरूर एक बार, कहीं हमें कुछ गलत फहमी तो नहीं हो। मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है, तो हो सकता है दोस्तों कोई मिस्टेक हो या फिर कोई और चीज हो जो हमें समझ में नहीं आई है इस मूवी में। लेकिन वो छोड़ दिया तो बाकी सारी मूवमेंट बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। इवन जो लोकेशंस भी चूज किए गए, इवन स्कूल, जिस तरीके से उन्होंने स्कूल दिखाया वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल दोस्तों, और जिस तरीके से उनके फ्रेंड्स जो थे, जितने भी सारे फ्रेंड्स थे, उनका जो रियूनियन था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, इशारों इशारों में बातें कर रहे थे, किसी का सीक्रेट किसी के पास है, ये जो चीजें होती है मतलब इतने सालों बाद मिल रहे हैं फिर भी उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, उनका बॉन्ड वैसे ही दिखाया है। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों 96 ओवरऑल मूवी हमें बहुत अच्छी लगी। और ऐसी मूवीज जो होती है ना दोस्तों, वो रिएक्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ये मूवी को प्रोसेस करना बहुत हार्ड होता है। मतलब और इसके एक्शन बारे मूवीज में करना, बात करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप बोल नहीं पाते हो ऐसे मोमेंट में जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए। तो ये मतलब हमारे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था कि ऐसी मूवीज रिएक्ट करते वक्त हम कैसे खुद को अपहोल्ड कर रहे थे और कैसे हम उसमें सरवाइव कर रहे थे, यही बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ये मूवी हमें बहुत अच्छी लगी। और एक चीज मुझे इसमें ये पसंद आई है कि राम और जानू के बीच में डिस्टेंस जो दिखाने के लिए ना, एक बहुत ही शुरू से ही कुछ ऐसे, मतलब सिनेमेटोग्राफी कह सकते हैं। कभी लाइंस रोड में उनके बीच में एक हाँ। डिफरेंस है, कभी मेट्रो में खड़े हैं तो उनके बीच में एक पोल दिखाया है, एयरपोर्ट वाला सीन दिखाया गया है तो उसमें वो दो फ्रेम्स में अलग अलग खड़े हुए। तो वो शुरू से ही उनमें एक डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है, वो दिखाया है वहाँ पे। बिल्कुल, हम उसे बोल सकते हैं कि वो इतने पास होकर भी एक नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा कुछ उस चीज का मतलब हो सकता है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी मूवी के साथ। बाय बाय।